Dear student, today I am going to start with a new unit of English grammar, that is determiner. What is a determiner? A determiner is a word that determines the kind of reference a noun has in the context it is being used. What does this mean? इसका क्या अर्थ हुआ? A determiner is used to determine the coming of a noun in a sentence. It adds something to the meaning of a noun. Dear students, I would remind you of the classification of words. All the words have been classified into 8 parts. Each part is called part of a speech. But when you go through all the classifications of the words, when you go through all types of the words, you do not come across determiner. All the words have been classified into 8 parts: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. No determiner has not been mentioned. So where does this determiner come from? This is a question that I would like to answer. A determiner is a part of adjectives. Adjectives का ही एक पार्ट डिटरमिनर या डिटरमिनर एडजेक्टिव्स से ही निकला हुआ है. एडजेक्टिव्स के ही एक ग्रुप है को डिटरमिनर्स कहते हैं. एडजेक्टिव्स के ऐसे ग्रुप्स जिस पर मॉर्फेम्स का कोई प्रभाव नहीं है, मतलब दोज क्वालिफाइंग वर्ड्स which are not influenced by morphemes are called determinants. They are called determinants. Adjectives के ही वो parts. Means what? The question would still remain in the mind of the students. All the adjectives have been classified into 2 groups. All the adjectives have been classified into 2 groups, Group A and Group B. Under Group A, there are the adjectives which are influenced by the morphemes, जिस पर morpheme का प्रभाव पड़ता है, जिसके रूप में आप परिवर्तन कर सकते हो. But under B, there are the adjectives which are not influenced by morphemes. They are structure words. And those adjectives which are not influenced by morphemes are called determiners. उसी को determiners कहते हैं. और इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है, ये determiners adjectives का ही एक part है. Now the question arises, what is the difference between an adjective and a determiner? दोनों में अंतर क्या है? There is difference. वो difference क्या? आप जब पढ़ोगे कि adjectives के कितने uses होते हैं, there are 2 uses of adjectives. The first one is attributive use of adjectives, and the second one is predicative use of adjectives. Adjectives can be used in both the ways, attributively and predicatively. But determiners cannot be used predicatively. Means determiners are always used attributively. One more question comes to the mind of the student. Attributive use and predicative use. Difference between these 2 terms. Attributive use. The use of adjective in which the adjective comes
before the noun it qualifies is called the attributive use of adjective, and the use of adjective in which the adjective comes after the noun it qualifies, it is called predicative use of adjective. एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे आप सिंपल सेंटेंस ले लें, दिस पेन इज रेड, दिस पेन इज रेड, पेन रेड, पेन इज द नाउन, रेड इज एन एडजेक्टिव, पेन पहले आया, रेड एडजेक्टिव बाद में, और इस प्रकार का जो यूज एडजेक्टिव का हुआ रेड, इसको कहेंगे प्रीडिकेटिव यूज। दूसरा, दिस इज अ रेड पेन, रेड पेन, इसमें पेन बाद में आया है और रेड पहले, तो ये जो रेड है ये कौन सा यूज हो गया, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। दिस वाज द डिफरेंस। ये एट्रीब्यूटिव यूज और प्रीडिकेटिव यूज के बारे में थोड़ा सा समझाया मैंने आपको। तो सभी डिटर्मिनर्स का प्रयोग जो होगा वह हमेशा एट्रीब्यूटिव यूज में होगा, ये समझना बहुत जरूरी, ये अंतर है दोनों में। दूसरा, एडजेक्टिव एक फॉर्म क्लास का वर्ड है जिस पर मॉर्फेम्स का प्रभाव, जिसके कई रूप हो सकते हैं। डिटर्मिनर स्ट्रक्चर वर्ड्स में से एक है और इस पर मॉर्फेम्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस इज आल्सो द डिफरेंस, बट नाउ you have to understand how many kinds are there of determiners. Determiners के कितने kinds होते हैं? Dear student, there are 7 kinds of determiners. In other words, we can say that there are 7 kinds of adjectives which fall under determiners, which are regarded as determinants, and they are: first, demonstrative determinants, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, उसी डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग डिमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स के रूप में होता है, एंड दे आर दिस, दैट, दीज, दोज, सच. They are demonstrative determiners. But you will have to keep in your mind one more thing. They are also demonstrative pronouns. Pronouns भी है ये, और ये determiners भी है, दोनों में अंतर समझ में रखना पड़ेगा. So when a noun is used after each of these words, then it is a determiner. Example: this boy has done this work. This boy, this के बाद यह boy का प्रयोग किया गया, तो जब this, that, these, those इसके बाद किसी noun का प्रयोग किया जाए, तब ये this, that, these, those ये सब determiners कहलाते हैं. जैसे those books are yours, those books are yours, those के बाद books आया, यहां पर those डिटर्मिनर हो गया. और those are your books in this sentence, those are your books, those के बाद are का प्रयोग हो गया, तब यहां पर those pronoun हो गया. तो you will have to keep in your mind that in case a verb is used after each of the words that I have already spoken, तब यह प्रोनाउन कहलाएगा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेकिन जब दिस, दैट, दीज, दोज इनके बाद यदि किसी नाउन का प्रयोग हो, तब यह डिटर्मिनर कहलाता है. And now the question arises, how do you use these words? Very simple it is. This, that,
ये दोनों वर्ड सिंगुलर है, इसके बाद नाउन भी सिंगुलर आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे दिस पेन, दिस के बाद पेन से नहीं कर सकते, तो दिस के बाद नाउन भी सिंगुलर, दिस पेन, और उसके बाद इज, वर्ब भी सिंगुलर। तो इस प्रकार से आप यूज करते हैं। दीज दोज, ये दोनों वर्ड्स प्लुरल है, इसके बाद नाउन भी प्लुरल, वर्ब भी प्लुरल। दोज चेयर्स आर ब्रोकन, दोज चेयर्स, दोज के बाद चेयर्स का प्रयोग किया गया, दोज चेयर नहीं कर सकते, तो दोज के बाद नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल यूज। सच का प्रयोग, सच के बाद तीनों प्रकार के नाउन्स का प्रयोग होता है। सच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, सच के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का भी प्रयोग हो सकता है, सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, सच अ टीचर कैन टीच अस इंग्लिश वेरी वेल। सच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो सच के बाद ए अथवा एन का प्रयोग अवश्य होता है, लेकिन सच के बाद यदि प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तब उस काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता। सच के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग इस प्रकार से होता है, जैसे सच बुक्स आर यूजफुल फॉर यू, सच बुक्स आर हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, जैसे सच कॉफी इज नॉट टेस्टी। डियर स्टूडेंट, सच के बाद एज का भी प्रयोग होता है, सच के बाद दैट का भी प्रयोग होता है। सच के बाद जब एज का प्रयोग होता है तो दो तरह से सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे सच के बाद एज के बाद एक क्लॉज आ सकता है, सच के बाद एज के बाद एक इन्फिनेटिव का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, he was not such a good student as we had expected, एज का प्रयोग हुआ। she is not such a student as to believe her, इस प्रकार से सच के बाद दैट का भी प्रयोग होता है। याद ये रखना है, सच के बाद यदि वर्ब का प्रयोग हो तो दैट का प्रयोग अवश्य होगा। सच वाज हिज बिहेवियर दैट एवरीवन डिसलाइक्ड हिम, इस प्रकार से आपने सच के प्रयोग के बारे में देखा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि सच के बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो तब ये डिटर्मिनर नहीं हो सकता। नाउ we have to study the second kind of determiners, that is distributive determiners. Distributive determiners, they are each, every, either, neither, each, every, either, neither। इसमें से एवरी को जरा हटा दो तो ईच, ईदर एंड नीदर ये प्रोनाउंस भी है और डिटर्मिनर्स भी है, लेकिन एवरी ऑलवेज डिटर्मिनर्स है, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता। मीन्स व्हाट? मीन्स दैट ईच, ईदर और नीदर ये तीनों का प्रयोग दोनों तरह से हो सकता, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता और एडजेक्टिव और डिटर्मिनर के रूप में भी हो सकता। अब कैसे पहचानोगे? जब ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद कोई नाउन का प्रयोग हो जाए तब यह डिटर्मिनर कहलाएगा। जैसे ईच बॉय हैज अ पेन, ईच बॉय, ईच के बाद बॉय नाउन का प्रयोग किया और इस प्रकार से ईच जो है वह डिटर्मिनर बन गया। अब आपको एक बात ध्यान देना है,
ईच एवरी इधर नीदर के बाद जो नाउन का प्रयोग होगा वह नाउन ऑलवेज सिंगुलर में होगा, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। मीन्स ईच एवरी इधर नीदर, इसके बाद प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ईच के बाद, इधर के बाद, नीदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग किया गया हो तब उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज इज इनोसेंट, इज इनोसेंट, इज का प्रयोग किया सिंगुलर वर्ब का, लेकिन इज के बाद ऑफ अगर लगा देंगे तब नाउन प्लूरल आ जाएगा, तब बॉयज हो जाएगा। तो ईच ऑफ द बॉयज इज इनोसेंट। इस प्रकार से इच का भी, इधर का भी, नीदर का भी प्रयोग करेंगे। एवरी के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि एवरी ऑलवेज डिटर्मिनर है और या एडजेक्टिव है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि ईच के बाद, इधर के बाद, नीदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग किया जाए या किसी वर्ब का प्रयोग किया जाए, आई हैव 10 बुक्स, इच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। उस केस में भी, इन दैट केस इच इज अ प्रोनाउन, वह प्रोनाउन होता है। इच, इधर, नीदर, ये प्रोनाउन कहलाएगा। इच और एवरी का यूज आप कैसे करोगे? इच का प्रयोग भी प्रत्येक के अर्थ में होता है, एवरी का प्रयोग भी प्रत्येक के अर्थ में होता है, थोड़ा अंतर है दोनों में। इच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए किया जाता है। एवरी का प्रयोग भी दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए किया जा सकता है। थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने पहले बताया। दूसरी बात ये कि लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए प्रायः इज का प्रयोग करते हैं। अनलिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए एवरी का प्रयोग करते हैं। कुछ एडवर्ब्स जैसे ऑलमोस्ट, नियरली, पार्टिकुलरली, विदाउट एक्सेप्शन, एडवर्ब फ्रेज, इनके बाद यदि इच या एवरी में से किसी का प्रयोग किया जाए तो एवरी का ही हम प्रयोग करेंगे। इच का प्रयोग करने पर वह गलत हो जाएगा। ये कॉमन एरर्स में, एडिटिंग में इस प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जैसे शी हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, यहां पर ये नहीं लिख सकते शी हैज रेड ऑलमोस्ट ईच बुक शी हैड, ये गलत हो जाएगा। एवरी बुक एंड दिस वे। नाउ इधर एंड नीदर, इधर का प्रयोग दो में से कोई एक या दो में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए इधर का प्रयोग करते हैं। और इधर डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है, मैंने पहले ही बता दिया। अब जैसे एग्जांपल के लिए, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, यू कैन टेक ईदर बुक, तो इसमें कोई एक बुक के बारे में कहा गया। जैसे देयर आर ट्रीज प्लांटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, इसका क्या अर्थ हुआ कि रोड के प्रत्येक साइड, मतलब रोड के कितने साइड होते? 2, दोनों में से प्रत्येक साइड में ट्रीज प्लांटेड है। यहां पर ईदर का प्रयोग 2 में से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हुआ है। नीदर का प्रयोग, इसका प्रयोग 2 में से कोई नहीं। जैसे नीदर बुक इज इंपॉर्टेंट, इसका क्या अर्थ हो गया? देयर आर ओनली 2 बुक्स,
दो बुक्स है, दोनों में से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस प्रकार से आप नीदर का प्रयोग करते हो। डियर स्टूडेंट, वॉच ईच एंड एवरी वीडियो वेरी केयरफुली and try to learn what I have tried to make you learn. In the next video, I will be explaining to you the remaining kinds of determinants and their usage. Dear student, don't forget to subscribe to this channel, like it and share it. Do comment as well. Thank you very much.